Neil Kingston Jasper from ITC Limited for making an investment of 662.73 crore rupees in the state. Mr. Sangram Chaudhary, MD, Banaskantha District Cooperation Milk Producers Limited for making an investment of 612.35 crore rupees in Uttar Pradesh. Mr. Shyam Bhai Virani Balaji Wafers from Balaji Wafers Private Limited for making an investment of 492.94 crore rupees in the state of Uttar Pradesh. Mr. Gursaran Singh, Chairman and MD, RACL Geartech Limited, for making an investment of 250 crore rupees in the state of Uttar Pradesh. Mr. Sachin Bhatnagar from Asian Paints Limited for making an investment of 143 crore rupees. Mr. Arun Lath, Vice President from Kujaria Ceramics Limited for making an investment of 110 crore rupees in Uttar Pradesh. Mr. Anuj Kumar from CP Milk and Food Products Private Limited, Gorakhpur, for making an investment of 84.28 crore rupees. Mr. Sandeep Agarwal from Creamy Foods Limited has made an investment of 192 crore rupees in Uttar Pradesh. और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि 32 कंपनियां जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना बेस स्टैब्लिश किया है उनको इंसेंटिव चेक प्रस्तुत करें. JB Park from Samsung Noida will receive an incentive check of 549 crore 83 lakh 44,039. Seung Kyu Lee from Samsung Display Noida Private Limited will receive an incentive check of 161 crore 47 lakh rupees. Mr. Sandeep Ghosh from RCCPL Raebareli will receive the check of 128 crore 7,77,329 rupees. Mr. Kamlesh Kumar from Varun Beverages will receive the incentive check of 98 crore 66 lakhs 53,503 rupees. Mr. Dr. Raghav Pad Singhania from JK Cement will receive the check worth 58 crores 28 lakhs 5,329 rupees. Mr. Gajendra Pratap Singh from Shree Cement, Bulandshahr will receive the incentive check of 41 crores 73 lakhs 84,324 rupees. Mr. Pavan Danwar from HCL IT City Lucknow Private Limited will receive the incentive check of 33 crores 89 lakh rupees. Mr. Rajesh Sablok from Messrs. Brindavan Agro Indus Private Limited will receive the incentive check of 33 crores 77 lakhs 44,682 rupees. Mr. CP Agarwal from Gallant Ispat Limited, Gorakhpur, will receive the incentive check of 44 crores 21 lakh 64,973 rupees. Mr. Devashish Mehta from Messrs. Omax Autos Limited will receive the incentive check of 21 crore 48 lakhs 41,568 rupees. Omax Auto is one of the top 10 automotive component manufacturers in India.
known for its precision engineering and supply of high-quality parts to major automobile manufacturers. Mr. Suraj Gupta from Srigang Industries and Allied Products will receive the incentive check worth 20 crore rupees. Mr. Yashwant Mishra from Messrs. Mangalam Cement Limited Mr. Yashwant Mishra from Messrs. Mangalam Cement Limited will receive the incentive check worth 19 crores 62 lakhs 20,349 rupees. Mr. Sandeep Ghosh from Messrs. Birla Corporation Limited will receive the incentive check worth 14 crores 13 lakhs 24,558 rupees. Mr. Arvind Agarwal from Paswara Papers will receive the check worth 13 crores 15 lakhs 25,510 rupees. Mr. Yang Shan Zhong from LG Electronics Noida will receive the incentive check of 11 crore 85 lakhs 8,154 rupees. Mr. Raj Navneet Rao from Messrs. Visakha Industries Limited is being presented the incentive check of 11 crore 49 lakhs 87,026 rupees. Mr. Mukesh Saxena from Messrs. Ambuja Cement Limited is being presented the incentive check worth 10 crore 80 lakh rupees. Mr. Ajay Kumar from Messrs. Ecoplus Steel Private Limited is being presented the incentive check worth निवेश परियोजनाओं के प्रोत्साहन राशि वितरण और नए निवेश के लिए आज एलओसी जारी करने के लिए आयोजित आज के समारोह में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश शासन के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री अजीत पाल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री अनिल कुमार सागर जी, आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश के हमारे वे सभी उद्यमीगण जिन्होंने अपना निवेश सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न करने के बाद आज इंसेंटिव यहां पर इस समारोह में प्राप्त कर रहे हैं और जो नए उद्यम लगाने के लिए आज यहां पर सरकार के एलओसी जारी करने के आशय पत्र को प्राप्त कर रहे हैं, उपस्थित सभी अन्य औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, उद्यमीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका उत्तर प्रदेश पर विश्वास व्यक्त करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आज आपको 1333 करोड़ रुपए से अधिक के
सरकार के कमिटमेंट के जो पॉलिसी के अंतर्गत सरकार का कमिटमेंट था उसके अनुसार ये इंसेंटिव प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आप सबको मैं बधाई भी देता हूं। यह आयोजन केवल इंसेंटिव वितरण से संबंधित मात्र नहीं है, बल्कि शासन के प्रति, शासन के कमिटमेंट के प्रति आपका विश्वास और सुदृढ़ हो, इसके लिए हम लोग आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह व्यक्ति जानता है कि यह समारोह है, इसमें इसकी धनराशि सीधे आपके अकाउंट में चली गई होगी, लेकिन उस कमिटमेंट का जो आपने यहां पर एक विश्वास आपके सामने आपको हमने आश्वस्त किया था कि नहीं, हम आपको भी और आपकी पूंजी को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वह निवेश मित्र सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर एमओयू मॉनिटरिंग की जो प्लेटफॉर्म तैयार हुए हैं या इंसेंटिव वितरण के प्लेटफॉर्म तैयार हुए हैं, यूपी इन्वेस्ट के माध्यम से जिस कार्य पद्धति को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वह कितना आगे बढ़ा है, या आज यहां पर आपने हमारे कुछ उन सफलतम उद्यमियों के विचारों को सुन करके स्वयं भी महसूस किया होगा, राज्य भर ने इस बात को महसूस किया होगा, और आपकी बात को हम तक पहुंचाने और इन सभी उद्यमियों की आवाज को प्रदेश के युवाओं तक पहुंचाने के लिए जो हमारी मीडिया के प्रतिनिधिगण हैं, इन्होंने भी सुना है। और खास तौर पर इस अवसर पर मैं श्री जेबी पार्क अध्यक्ष दक्षिण एशिया सैमसंग, श्री राघवपत सिंघानिया जेके सीमेंट, श्री संदीप घोष बिरला कॉरपोरेशन, श्री सीपी अग्रवाल जी अध्यक्ष गायलेंट इस्पात, श्री पवन दावर सीएफओ एंड चेयरमैन एचसीएल ग्रुप, श्री सेनो अग्रवाल एमडी अशोक लीलैंड, और श्री विक्रम पोदार एमडी एंड सीओ कैनपेक इंडिया के माध्यम से जो विचार आपको सुनने को प्राप्त हुआ होगा, वह आज इस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। बहनों और भाइयों, यह सच है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इस प्रकार का माहौल नहीं था जहां पर हम लोग या उत्तर प्रदेश का निवासी अपने आप को इस बात के लिए कह सकें कि आप भी किसी उद्यमी से कि आप भी यहां पर निवेश करिए। न माहौल था, न सरकार का विजन ही था, करना भी नहीं चाहती थी। उनके अपने संकीर्ण स्वार्थ थे, उनका अपना एक दायरा था। उनके लिए उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सके, ये उनके विजन में कहीं भी नहीं था। कहीं भी उन लोगों का ये लक्ष्य भी नहीं था। एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना, इसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाकर के हम मशीनरी का दुरुपयोग करें, अराजकता फैलाएं, गुंडागिर्दी करें, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, महिला सुरक्षा की स्थिति या फिर झूठे आश्वासन देकर के, यही सब होता था। और यही कारण था
2017 के पहले उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने और खास तौर पर युवाओं के सामने पहचान का संकट था। देश के अंदर जाते थे, कहीं दुनिया के अंदर जाते थे, लोग उसे बड़ी बड़ी हे भरी निगाहों से देखते थे। एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था, डेवलपमेंट नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यंत कमजोर था और कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में तो कहना ही क्या था। स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं